किया था और क्वाड्रेटिक को ही मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक के हम लोगों ने लास्ट जो किया था क्वाड्रेटिक के लिए द रूट्स एंड ऑल। सो नाउ जस्ट आई एम गिविंग यू few of the relation between the roots. Ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the quadratic. Now, first question I'm giving you on this is if one root is alpha and second is alpha square, so find condition between a, b and c. Right, lot of questions are there. इसके बहुत सारे questions हो जाएंगे. Starting with this one, the basic one. One root is alpha, other root is alpha square. What is the relation between a, b and c? Right? You want to try और मैं जल्दी से करके दिखाऊं? नहीं सर, एक बार ट्राई कर ले। हाँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है. Just you have to start and just end up this thing. Right? One root is alpha, other root is alpha square. Now you have to find the relation between A, B, and C. And I'll request everyone switch on your cameras. मैंने एक चीज भेजी है। Yes. Hi, Prantik. Yes, yes, yes. Go ahead. एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा. Better than this one. You can see this. सर ये अल्फा के टर्म्स भी है ना? नहीं बेटा, ABC, परफेक्टली ABC के टर्म्स में. क्वाड्रेटिक के नेचर्स में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं. सो आज मेरी कोशिश है एक थोड़ा सा हम अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलेंगे. राइट? सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड लाइक मोर ऑफ द क्वेश्चन you'll get in this. So only what you have to use is only sum of the roots minus b by a and product of the root is c by a. Okay. Now you can use a सर very basic formula. Yes, Adya? अब सही है। Just a minute. See, you can use a very basic idea on this, and that's a very effective. Very effective. What is that? Since a plus b plus c is equal to 0, see this carefully, na? If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. That's it. That's it. Right? Alpha cube is c by a. This is c square by a square plus b cube by a cube is equal to 3 is c b by a square. Now multiplying complete by a cube. A square c square a, b cube is equal to 3abc. So the idea must be there, like what I have to use. So you all know for each and every question of like this these type of question, जितने भी ऐसे questions होंगे, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, माइंडसेट हमें तैयार रखना है. मेरे पास दो ही आइडिया है. इधर
मुझे सम यूज करने हैं और प्रोडक्ट यूज करने हैं, और इन दोनों के हेल्प से आई हैव टू गो फॉर दिस, राइट। यही दोनों के हेल्प मेरे को चाहिए, जिससे आई हैव टू गेट एवरीथिंग, राइट। सो द आइडिया इज समथिंग लाइक दिस ओनली। हाँ, मैंने सम ऑफ द रूट लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिया, बट थोड़े से एक बेसिक अलजेब्रा मैंने यहां पर अप्लाई कर दिए। ओके एवरीवन, सर मैं यही यूज कर रहा था। वेरी गुड शौर्या, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड। सर मेरा भी आ गया था लेकिन मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स चलेगा, तरीके से यू किया। अंडरस्टैंड, हाँ, ओके, लाइक वन टाइम यू हैव टू जस्ट गो विद दिस, हाँ। सो बट मैंने जो आपको वो पहला वाला दिया उसको मैंने क्यूब किया वगैरह वगैरह करके ही आया। ओके, सो बहुत सारे इसके क्वेश्चन होंगे। नाउ आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ओनली, नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन get from this. One root is alpha, other is 1 by alpha. One root is alpha, other is 2 alpha. One root is alpha, other is n alpha. Right? All these questions are same. One root is alpha, other is beta. Alpha minus beta is equal to 1. Alpha minus beta is equal to some n value is given. Right? Some values is given, or the ratio of the roots are given. Alpha by beta is equal to 2 by 3, 5 by 4, lambda by 1, mu, something is given. All the questions are same question. So one question will do from this, but every time you have to go with same type of idea. Now you have to eliminate lambda. Oh, sorry, you have to eliminate alpha in this case. Okay. Okay, everyone. Now, see. So what if I'm giving you ax square plus bx plus c is equal to 0. Roots are alpha and beta, and alpha upon beta is given as 2 by 3. Find relation between a, b and c. अब देखें क्या आइडिया आप लगाते हो। सर एक बार ऊपर की स्लाइड दिखा दोगे? यस बेटा, ये पूरे लिख के रखना सभी लोग, जो मैंने ये ऊपर लिखा है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ना, आप सबके सब ट्राई कर सकते हो। आज हम लोग IUQM और RMO के क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, सो एवरीवन केयरफुल ना। क्वाड्रेटिक से आगे मैं बढ़ाऊंगा आज आपको, तो थोड़े से ख्याल रखने हैं। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इन दिस, जो यस, फिफ्थ वाला आपने लिखा है वो अल्फा माइनस बीटा मॉड के अंदर जो फिफ्थ वाला आपने लिखा था सर। अल्फा माइनस बीटा मॉड इज इक्वल टू n, और एक में 1 लिखा है बेटा। ओके सर अलग दो क्वेश्चन है ना? हाँ, मतलब 5 है, 6, मतलब n मैंने जनरलाइज कर दिया उसे। सी, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी ना, मैं सीधा आ जाता हूं इस पे। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मैं क्या चाहता था कि आप करो। यहां पर मैं यूज करूंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। बेसिक कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इन द मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3 इज इन द मॉड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अल्फा प्लस बीटा the whole square upon alpha minus beta, the whole square is equal to 25. Now you know that alpha plus beta is minus b by a. Alpha minus beta is root d by a the whole square. Can you see this? That's it. यही काम करने थे। So just idea है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है। We have to understand कि ये कैलकुलेशन कैसे फिक्स करने हैं ना। ए बी सी में अपने रिलेशन एस्टैब्लिश हो जा रहे हैं। ओके, ओके। नाउ अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मिनिमम डिग्री
what is the minimum degree of the polynomial whose coefficients are integers और रियल, दोनों जो भी दे सकते हैं, and one of the root is root 2 plus root 3. Also find other roots. बहुत बेसिक हो गया, यहां से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे. सर हुज के बाद क्या लिखा है? Whose coefficients are integer. ओके सर. What is the minimum degree of the polynomial whose coefficients are integer and one of the root is root 2 plus root 3? Also find other roots of this. See, तो मेरे को गिवन क्या है कि द पॉलिनोमियल इज देयर. अब क्वाड्रेटिक से वो हट गया, अब पॉलिनोमियल के बोलता है कि रूट्स जो गिवन है रूट 2 प्लस रूट 3. तो मान लेता हूं x इज इक्वल टू, राइट. मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं बेसिक से. अगर हमने यहाँ पर कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें थ्योरी लिखा था कि अगर वन रूट इज 2 प्लस रूट 3, सो अदर रूट मस्ट बी 2 माइनस रूट 3 व्हेन द कोफिशिएंट्स आर रैशनल. ओके, वो क्वाड्रेटिक कौन होगा? तो कैन आई से कि x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 3 एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसका रूट एक ही है, राइट. इसका एक रूट जो है वो 2 प्लस रूट 3 है. व्हाट इज द अदर रूट? सो अदर रूट, तो अदर रूट के लिए क्या करूं? मैं सिंपल ये बोलूं क्या? ध्यान से, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एवरीवन एकदम ध्यान से. सी, अब ये 2 प्लस रूट 3 है और उस वो x लीनियर था और वहां से मैं क्वाड्रेटिक खींच लाया. कैसे? मैंने यहां पर स्क्वायर किया. तो स्क्वायर अगर मैंने किया है तो 100% आई एम श्योर कि ये स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों के लिए सेम काम कर रहा होगा. आर यू गेटिंग दिस? कि अगर मेरा माइनस भी रहता तब भी यही काम कर रहा होता, यही वाली. मैं अगर अदर वे राउंड जाऊं तो ये इक्वेशन के लिए सेम जाता. मींस जो मेरे पास कंडीशन यहां पर x माइनस 2 इजिकल टू रूट 3 के लिए आ रहा है, सेम कंडीशन मेरे को माइनस रूट 3 के लिए भी आना चाहिए. यार मतलब साफ है, इसका सेकंड रूट तो यही होना चाहिए इफ द कोफिशिएंट्स आर रैशनल. क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? सो एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो 100% दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा. देन द कोफिशिएंट, ये 1 4 1, द कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. नाउ सो लेकिन क्वेश्चन में मेरे को ट्विस्ट किया. क्या ट्विस्ट किया? उसने नहीं दिया 2 प्लस रूट 3, उसने दिया x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3. यहां से तो मेरे को आइडिया नहीं लग रहा, बट व्हाट आई कैन डू, मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर plus 3 plus 2 root 6. This is coming as x square is equal to 5 plus 2 root 6. Are you getting this? अब मेरे पास आइडिया है कि इसकी इर्रेशनलिटी अब तो मैं खत्म कर लूंगा. कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2 रूट 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 24. सो x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. राइट. यहां पर ध्यान दो, कोफिशिएंट 1 है, माइनस 10 है, 1 है, ऑल आर इंटीजर्स. इज दिस ओके? बट क्या आप बता सकते हो तो क्या डिग्री क्या हो गई इसकी? 4. अब अगर ये 4 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे?
4, वो रूट्स कहाँ पर हैं, कौन कौन से हैं, वो निकालना है। पहले इसे नोट करें, थोड़ा दिमाग लगा के बताएं सर, दीज आर द रूट्स, ये रूट्स होंगे आपके, और दिखाई दे रहा है यहाँ सॉल्यूशन में। अगर लास्ट वाले को आपने फॉलो किया हो तो ये दिख रहा है ना। क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, बट पहले इसे कंप्लीट। यस, वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड जील। ये दिल मांगे मोर 4 है ना। अच्छा, एक्सेप्ट दिस। एक दिया। यस। यस सुतीक्षा, वेरी गुड। See, so this is the one, right? So can I say ki like I'm squaring here, so this is coming with plus minus 5, or this is coming with plus minus 2 root 6. Right, I'm transferring this, so this is and again I'm multiplying, so this is coming from plus minus 5 and plus minus 2 root 6. So all the roots are plus root 2 plus root 3 minus root 2 plus root 3 root 2 minus root 3 minus root 2 minus root 3. These all are the four roots. Is this okay? Is this okay, everyone? How many of you got this? Please write down yes in the chat, और जैसे भी आपको लगता है please. Naisa, okay? Yusuf, okay? Abhyuday, okay? Okay, now. Arha, okay beta? Prantik, see. बिकॉज सी मैं क्वेश्चन चेंज कर लूंगा इसके बाद, क्वेश्चन चेंज होके यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6. नाउ अगेन, what is the minimum degree of this polynomial when the coefficients are integers, and tell about all the other roots. जितने रूट्स हैं वो भी आपको बताने हैं, साथ ही साथ इसके मिनिमम डिग्री क्या होंगे. नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट देखें आप कैसे डील करते हो. फिर इसका क्या करेंगे? Or what is the minimum degree of the polynomial when one of the root is given as this, and till the other roots? If the polynomial having coefficients integers, integral coefficients are there, right?
सर आप मेरा आंसर चेक कर सकते हैं? Just a minute. Very good. सर सही है? तक तो सही रहा है। अभ्युदय, सुतीक्षा, all the roots. Very good. Apurva, very good. Four. You got the answer also. Very good. Okay. Good, 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 good. Can you get the, like, what is the polynomial? Obviously, you can get the polynomial also in this. Right. What we can do. So get the polynomial also. Degree is 4. Very good. All the roots you have written. Very good. So, like, if you want, you can get the polynomial also. Everyone try for that. Try for that. Very good. सर भेजना है? हाँ 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 हाँ, चलेगा। नहीं भेजो भी नहीं चलेगा, बट निकाल लो एक बार। भाई क्या करूं, तो x माइनस रूट सिक्स इज इक्वल टू √2 प्लस √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स सर स्क्वायर। लेकिन ये मतलब निकालने के लिए मिनिमम डिग्री क्या है, तो फिर तो पॉलिनोमियल निकालना ही पड़ेगा ना? चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड हो भी सकता है, हाँ बट ओके। चलेगा ना। 5 plus 2 √6. Now both having √6, so this is x square plus 1 is equal to √6 common out, 2x plus 1. Okay, then again squaring both sides. So you are getting the polynomial. Very good, everyone. Abhidya, very good. Shaurya, same. Arha, सर Yusuf, same. भेजने वाला था। हाँ, almost same ना, यही ना? यस सर, भेजने वाला था। Yes, so degree is 4 and all the other roots are, so plus minus you can do, so you know all the other roots are coming. Very good. So this was the question from IOQM only. उसमें उसने पूछ दिया था a plus b plus means x to the power 4 के बाद जो रूट्स थे वो तो सिंपल वन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये 5 मार्कर में था। इसी क्वेश्चन को एक एग्जाम पहले होता था KVP वन, उसने इसी क्वेश्चन को पूछा था। इट वाज समथिंग लाइक दिस, √2 plus √3 plus √5, x is equal to, now we have to find minimum degree of the polynomial and what are the other roots, दोनों चीजें थोड़ा ध्यान से, just you have to get the roots, but ध्यान से थोड़ा। May I? Very good. Whose answer is this? Vivan? For this one, beta? Sutiksha? Good one, Sutiksha. एक बार फिर चेक कर लेना विवान।
Apurva, very good. Highest thing, minimum. Highest to it can go to anywhere, na? Something will be matter. Abhudaya, very good. Very good. Stiksha, very good. All the other roots you can write now. Minimum, yes. सर भेज रही हूँ. None not required. Just you have to write down, sir, all the eight roots now. So just you have to see the, like, here is the two signs it can take. Here it can take two signs. Here it can take two signs. So 2 into 2 into 2, all the eights are coming. Not required to. So if you'll see, मिनिमम डिग्री 8 है. yes, ओके. 5 plus 2 root 6. And this is x square minus 2x root 5 plus 5 is equal to 5 plus 2 root 6. Now 5 cancelling out. Again squaring both sides. I can do that. So x to the power 4 plus 4x square into 5 minus 4x root 5 is equal to 4 into 6, 24. Now you know, like I'll transfer this to, again you'll get x to the power 8. That's a very good. Real. Very good. Oh, very good. Real. Very good. This type of commitment is required. Very good, Vita. Okay, everyone. So this is about कि now, like if rational, irrational numbers are given, then we have to deal with that. So little bit we have to work. But एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, but वो अभी के लिए शायद हम लोग थोड़ा सा और टाइम हमें लेना चाहिए वहां पहुंचने के लिए ना. तो अभी मैं वहां नहीं पहुंच रहा, अभी थोड़ा सा यहाँ तक ही रखता हूँ. द सेकंड थिंग, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस इज, see we have already seen कि polynomial and zero. This is okay ना everyone? मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा ना. यस सर. तो स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सिंपल से. px is the polynomial of degree 5 with leading coefficient 1. Okay, leading coefficient 1. p1 is 1, p2 is 4, p3 is 9, p4 is 16, p5 is 25. P6, what is the value of P6 that we have to find? Take your time, everyone. And it's not 36, please. Don't write 36. Na? सर आंसर. Very good. Very good. Perfect.
May I? So just 2 minutes. Okay, beta. Very good. Ayush? Oh, no, Ayush. Oh, I said 36 is not the answer. First thing. Huh? See, Sir, answer the question. real. Very good. Perfect. Perfect. See, from this pattern, there is a pattern. What is this pattern? This pattern is P1 is equal to 1 square, P2 is 2 square, P3 is 3 square, P4 is 4 square, P5 is 5 square. But from this, I can't say that P6 is 6 square. Right? These five values are satisfying. That's it. From these pattern, I can say, let there is a polynomial gx that is px minus x square, and px minus x square, x is equal to 1, 2, 3, 4, and 5, satisfying these five values. Means, and in these five satisfying means this will be going to be 0 for these five values. Means g1, g2, g3, g4, and g5. These are the roots of this equation, and it was given that the leading coefficient of px is 1, so leading coefficient of gx is also 1. So from this information, I can say gx is nothing but x minus 1. X minus 1 is a factor because 1 is the root of this equation. X minus 2, x minus 3, x minus 4, and x minus 5. And gx is nothing but px minus x square, and that is equal to this only. Right? So, and from this I can say this px is the polynomial. This is x square plus this only. Now this is the polynomial. Now I have to find value of p6. So 100%, this is 6 square, this is 6 minus 1, 6 minus 2, 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5. So this is 36 plus 120, that's 156. Is this okay? Wow, very good, everyone. Very good, Ayush. Perfect. My expectation is more. राइट सो ये इस तरह के अगर क्वेश्चन कई बार मिलेंगे ये क्वेश्चन तो सबसे अधिक आने वाले क्वेश्चन में राइट अगर मैं इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन रखूं बट थोड़ी इंफॉर्मेशन चेंज कर दूं लीडिंग कोएफिशिएंट 5 px is the polynomial of degree 1 degree 5 with sum of the value p1 is equal to 1 by 2, p2 is equal to 2 by 3, p3 is equal to 3 by 4,
P4 is equal to 4/5. P5 is equal to 5/6. What is the value of P6? क्या निकाल पाएंगे या नहीं? अगर निकलेगा तो कैसे, नहीं निकलेगा तो क्यों? Leading coefficient is not given this time. So this is second time of, like this is in fact third जो आज हम लोग को जो करने हैं ना, 4 कंसेप्ट मैंने रखे हैं. This is the third concept, right? कि third concept की polynomials is given and वहां से कुछ values से we have to just arrange this one, how to go for this, ना? Degree, irrational roots, now going for finding the values of P6. मतलब उसके लिए आपको वैल्यूज नहीं रखने शुरू करने, 1 2 3 4 ये सब नहीं रखने होते, राइट? आपको पैटर्न देख के एक पॉलिनोमियल बनाने होते हैं. गुड 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 ये गुड सही है. जस्ट अ मिनट. वेरी गुड आद्या. जस्ट I'll check, just a minute. See, in this the polynomials, it's given that if you see this is x upon x plus 1. So, but I can't take this as px minus x upon x plus 1 as gx. ये लेना बिल्कुल गलत हो जाएगा. क्यों ऐसा? बिकॉज ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, और जब तक ये पॉलिनोमियल नहीं है तब तक मेरा काम खराब हो जाएगा. वो जो भी कंडीशन हमने लगाया है वो पॉलिनोमियल के लिए लगाया है. सो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसे तुरंत क्रॉस चल एक करना. सेकंड, ये क्यों Yes. नहीं आएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा ना, ये रैशनल पॉलिनोमियल हो गया ना. ऊपर x के टर्म आ रहे, नीचे भी x प्लस 1 आ रहा है, तो मैं पॉलिनोमियल की कोई कंडीशन नहीं लगा पाऊंगा. सो gx मेरे को बेटर रहेगा कि वो मेरे p1 p2 भी यूज हो जाए और ये भी सर हो जाए. जस्ट मिनट, ये देखना बेटा, ये देखना, बड़ा अच्छा काम करेगा तुम्हारे लिए. x प्लस 1 इंटू पी एक्स माइनस एक्स, ये ले लेता. अब एक चीज पूछनी थी सर. यस प्लीज. सर मैंने ऐसा किया कि px equals to 1 minus 1 by x. पी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस. फिर qx equals to px minus ब्रैकेट में x minus 1 by x, तो इस qx का रूट 1 2 3 4 5 आ गया. पॉलिनोमियल नहीं रहेगा ना. नाउ दिस इज द पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है, वो मेरे पॉलिनोमियल नहीं है. इफ यू आर राइटिंग पी एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो ये x नीचे चला गया ना, अच्छा सर, ठीक है. राइट? सो वी हैव टू मेक द पॉलिनोमियल. सो जैसे मेरे ये आ गए, बट एक मेरे को पंगा आ गया, एक गड़बड़ आ गया. क्या गड़बड़ आ गया? अब ये जो वैल्यूज मेरे पास गिवन है, राइट, इसकी डिग्री क्या होगी gx की? व्हाट इज द डिग्री ऑफ gx? सर अब तो डिपेंड करेगा ना. क्या? हाँ हाँ, डिपेंडेंसी से क्या आ रहा होगा ये बताओ. मतलब अगर 6 है तो सो px की डिग्री मेरी 5 थी, एक x प्लस 1 6 और आएगी सर. वेरी गुड. तो x प्लस और मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इसकी डिग्री हो गई 6, राइट? सो मेरे पास इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं 5, इसलिए मैंने बोला था क्या ऐसा पॉसिबल भी होगा. पहले तो ये देखो. तो अगर मेरे पास 6 डिग्री के पॉलिनोमियल आ गए हैं, राइट, उसका लीडिंग कोफिशिएंट भी नहीं गिवन है, तो अननोन कितने होंगे? अच्छा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है फाइंड आउट करना. यस, पहले तो ये पॉसिबल यहां पर नहीं है. ये पहले क्लियर है सभी को, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स, ये ऐसे समझाता हूं. एक क्वाड्रेटिक मैंने दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसमें कितने अननोन्स हैं? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 3. 3 अननोन्स, राइट? अब मैं बोलूं x इज इक्वल टू 2 है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी? क्या मैं निकाल पाऊंगा?
नो सर। इन्फिनाइट अलग वैल्यूज हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे जितने नंबर ऑफ अननोन्स है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम होंगे, देन ओनली आई कैन से कि हमारे कितने वैल्यूज हो रहे होंगे। अब यहाँ देखो, जब मैंने कहा डिग्री 6 है, तो ए एक्स टू द पावर 6 A1 कर लेता हूँ, प्लस A2 एक्स टू द पावर 5 प्लस A3 x to the power 4 plus a4 x to the power 3 plus a5 x to the power 2 plus a6 x plus a7। कितने अननोन्स हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं एक से डिवाइड भी कर दिया, मान लो A1 से सबको डिवाइड कर दिया, तब भी मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स हुए, एक को हटाने के बाद भी नंबर ऑफ अननोन्स हो गए 6। और मेरे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, कितने दिए हुए हैं मेरे पास? 5। सो जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन अगर हैं, या फिर कुछ दे दे, इंटीजर है, इवन है, ऑड है, कुछ ऐसा और इंफॉर्मेशन दे दे, तभी पॉसिबल है। यहां पर ये पॉसिबल नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं एक और वैल्यूज देनी होगी। तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी P0 भी, दैट इज 0, जो मैंने शुरुआत में रोक के रखी थी कि पहले ये बात बता सकूं। तो आई गेस सभी को क्लियर है, या मेरे को फिर से बताना है? ये जो Yes. मैंने सभी को, ओके एवरीवन? यूसुफ ओके बेटा? शौर्या, नायसा, अमोक, अपूर्वा ओके? ओके एवरीवन? नाउ सो अब आपके पास क्वेश्चन आप ही के पास है, आई एम नॉट सॉल्विंग। यहां तक इंफॉर्मेशन आपके पास है, GX आपके पास आ गया। इंफॉर्मेशन मैंने एक बढ़ा दी है, P0 P1 P2 P3 P4 P5। और यहां पर आपके पास 6 रूट है, लेकिन अभी भी एक गंदा काम मैंने करके रखा है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, मैंने नहीं दिया है, राइट? तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं वो चीज चाहिए होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट को कैसे हैंडल करें। टेक योर टाइम। बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं इसके। हाँ, तो एक बार इसे अच्छे से समझ लो, दो चार देखते देखते देखते। ओके, सो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, देखते सर जाओ साथ एक में। सेकेंड जस्ट एक आगे second। मतलब एक ओके ओके, यहां तक तो सभी को क्लियर है। यहां से आगे आपको बढ़ाना है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 है वो कैसे निकलेगा, ये सोचना है। वेरी गुड वेरी गुड। किसका आंसर आया? आ रहा 1 ओनली। कैसे बेटा, कैसे निकाला? हाँ सर मेरा भी वही आया। 1 आया? कैसे हाँ निकाल सर। रहे हो आप लोग, थोड़ा आइडिया दो मेरे सर को। मैंने तो फिर से QX इक्वल्स टू K को रीडिंग कोएफिशिएंट मान लिया इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x ये लिख माइनस 3 दिया। x माइनस 4। हाँ, तो ये हो गया। फिर Q माइनस 1 इक्वल्स टू, लाइक कैलकुलेट करने के बाद 1 आ रहा है, और दिस इज इक्वल्स टू K इंटू 720, मतलब 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा और नेगेटिव्स तो कैंसिल हो जाएंगे। तो K का वैल्यू 1/720 निकल कर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। फिर सो यहाँ पर में डालते वेरी हैं। वेरी गुड पॉइंट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे को एक हिंट मिल रहा है यहाँ से, क्या कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड, क्योंकि जितनी वैल्यूज थी मैंने सब कंज्यूम कर दिए हैं राइट हैंड साइड में। बट वी हैव टू फाइंड दिस लैम्डा, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू, लाइक आगे बढ़ ही नहीं सकता हूं मैं। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, सो मैंने x इज इक्वल टू -1 पुट किया। क्यों -1 पुट किया? क्योंकि -1 पुट करने पर दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, एंड 0 इंटू दिस
product will be 0 only. So this is coming as 1 is equal to lambda time of, I'm putting x is equal to -1. So -1, 2, 3, 4, 5, 6 times. So -1 to the power 6 is going to this, and 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. Okay. So lambda is nothing but 1 upon factorial 6, that's 720 only. लैम्डा की वैल्यू आ गई ना। अब ये लैम्डा अगर आ गया तो मैं बोल सकता हूं मेरा इक्वेशन जो है x प्लस 1 पी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/720, एंड ये x माइनस 0, x माइनस 1 अप टू x माइनस 5. दिस इज माई इक्वेशन. इज दिस ओके? आप लोगों को बोलना पड़ेगा, या तो हाँ बोलो ना बोलो, बोलोगे नहीं मैं हेल्प अधिक नहीं कर पाऊंगा फिर. इज दिस ओके एवरीवन? यहां तक नहीं तो मैं 2 3 Yes, 4 sir. बार समझा लूं. इट्स ओके. मतलब आई एम ओके विद दैट ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. ओके. अब ये आने के बाद मुझे चाहिए क्या? P6. ओके. सो P6 में दिस वैल्यू इज P7 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 अप टू 6 माइनस 5 अपॉन 720. कितना प्यारा रिजल्ट आ रहा है देखो. तो ये क्यों नहीं किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, ये सोचो. किसी भी एग्जाम के लिए देने के लिए तो ये बेस्ट क्वेश्चन हो गया. राइट. सो एक ये वैरायटी जो होती है, आई गेस मैं आपको समझा पाया हूं कि कैसे इसके वर्किंग होते हैं. ठीक है. लेकिन अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स हो उतने नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं हो तो मेरे को दिक्कत होगी इक्वेशन को फाइंड करने में, वैल्यूज को फाइंड करने में. बट मैंने उसके साथ में एक और छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, अगर उसमें कुछ इंटीजर, कुछ इवन है, ऑड है, कुछ ऐसा भी जुड़ा हो तो हम लोग उस रिस्ट्रिक्शन से काम पा सकते हैं. एक रशियन ऑथर थे डोरफी करके, इट वाज आई गेस मतलब 100 इयर्स के आसपास हो गया होगा. उन्होंने केवल इसी बात पर एक पूरी बुक लिख डाली, केवल इसी बात की नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करके उस पर काम किया जाए. तो उनके इक्वेशन बड़े प्यारे प्यारे होते हैं. जरूर कभी मौका लगेगा मैं उनके इक्वेशन भी कराऊंगा आपको. बट इस पे ये सभी को क्लियर है ना. मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से. अब एक जो मैंने बोला था कि 3 कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 100. ये प्योर इंटेलिजेंस होता है. आप कैसे यूज करोगे ये देखो. x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 124 एंड x स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 100. ओके. x y z आर डिफरेंट इंटीजर्स. x y z integers, right? Find x y z ऑर्डर्ड पेयर बोल लो या जो भी, whatever. देखना मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ अननोन्स यहां पर कितने हैं? 3. नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 2. हमारे पास कोई तरीका नहीं. लेकिन ये घुमा के एक बात मुझे दे दिया कि एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स, और वो भी दिया है डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है. राइट. ये अब आपके लिए कुछ काम करवाएगा. अदरवाइज आपके पास कोई तरीका नहीं है. अगर मैं नीचे वाले स्टेटमेंट को छुपा दूं तो ये 2 इक्वेशन से कभी कुछ ना निकाल सकते, कुछ भी नहीं आगे बढ़ेगा. बट क्वाड्रेटिक आप कर रहे हो, सिस्टम वही है. टेक योर टाइम, थोड़ा देख लो एक बार. सर ऑर्डर पेयर्स बताना है. चलेगा बेटा, हम और बता सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर. राइट डाउन द ऑर्डर्ड पेयर.
डन। सर लाइक मेथड तो निकल गया, वेरी लेकिन गुड, गो अहेड, वो गो अहेड, गो अहेड। टेक योर कुछ टाइम, टेक योर वैल्यूज टाइम, निकाल रही है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, गो अहेड। ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मैंने एक दिखाने के लिए दे दिया कि लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए कि एग्जैक्टली, बिलीव मी दिस इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। थोड़े से एफर्ट सबके आने चाहिए बस। सर आपके सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अपना बता सकती हूँ? जस्ट अगर यू कैन राइट डाउन तो वो बड़ा मजा आ जाएगा। इफ अच्छा सर, ठीक यू है सर। कैन, हाँ, यू कैन राइट इट डाउन इन फॉर्म ना। और should I start now? Very good. Mm-hmm. Not bad. So sweet. थोड़ा सा ये जो लिखा ना दिया आपने बेटा, थोड़ा सा उस पे थोड़ा सा नजर लगाओ, थोड़ी देर के लिए रुको। नहीं सर, वो आ गया मेरा। मेरा कितना आया? 8 सॉल्यूशंस आया। वेरी गुड, वेरी गुड। सेम सर। और अभी सब कुछ लिखते में ही मेरे सॉल्यूशंस की बहुत मेहनत किया तुमने, वेरी गुड। इतने मेहनत की जरूरत नहीं थी। अपूर्वा, कैसे, क्या थोड़ा आइडिया दो, हाउ यू आर सर गेटिंग दिस नंबर? सर मेरा आंसर सही है क्या? जस्ट अ मिनट। No, sir, I did a minus का mistake. I missed a minus, so I'm doing it again. या ओके, ओके, क्योंकि और वो नंबर तक पहुंचना इनसेन, वेरी गुड बेटा। वो नंबर तक पहुंचना वाज नॉट सिंपल जो तुमने भेजा। यस सुतीक्षा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। शुड आई स्टार्ट नाउ? नहीं सर, लाइक 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ओके। तो ये लीजिए। वेरी गुड, कुछ अच्छा लिखा लगता है। ओह, 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 लेट्स सी, लेट्स सी।
जब मैंने बताया ना, वो मतलब चैट में लिखते लिखते पूरी हालत खराब हो गई मेरी। नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक। अभी देखता हूँ बेटा, शायद मैं कुछ अधिक हेल्प कर पाऊँ। नहीं मतलब ये सही है कि नहीं? हाँ सही है। गलत होते क्या है यार, यू आर रीचिंग टू द आंसर, तो अपने आप में वो काम कर रहा है। हाँ, नो वरी। डन एवरीवन, अटेम्प्ट कर लिया सबने? मैं स्टार्ट लूं? लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स ओनली। सी, अब जो मेरे पास गिवन है उसमें लाइक वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर, एंड जस्ट वी हैव टू सी कि हाउ वी कैन गो फॉर दिस, राइट? सो लेट्स सी। सो एक तो सबसे प्यारी बात जो दिख रही है, आई गेस सभी ने वही किया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर is equal to, what this is minus, this is minus plus 24, right? अब आई डोंट नो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब इसमें किस तरह से आप वर्क करोगे, आई डोंट नो कि कैसे आप यूज करो इस चीज को। बट मेरा थॉट प्रोसेस जो बोलता ना, मेरा थॉट प्रोसेस ये बोलता क्या, कि मेरे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, एंड दिस कंसेक्यूटिव नंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दिस इज एक्स एक्स माइनस वन एंड दिस इज वाई वाई माइनस वन एंड दिस इज 24, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर का सम इज इक्वल टू 24। मिल सकता है मेरे को कब, जब ये 4 into 3 रहे, या जब ये -3 into -4 रहे। 10 है, खत्म। कैन यू सी दिस? 24, 12 plus 12 is 4, 3 into 4, 3 into 4, खत्म। कैसे ये क्या किया फिर? मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, सी, जो नंबर मैंने 24 देखा ना, तो मेरे दिमाग में दो चीजें चली, राइट? ये दोनों नंबर को देख के, इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस, तो 100% आई गेट वन इज एक्स एक्स माइनस वन एंड अदर इज वाई माइनस वन विथ प्लस साइन, एक माइनस साइन आएगा या जो भी, एंड दीज टू आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। एग्री ना? तो कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स दीज टू विल मल्टीप्लाई, दीज टू विल मल्टीप्लाई, सो बोथ आर even even. Okay, two consecutive numbers and even, and I have to break this 24 into sum of two numbers that's coming as the, like, both are even or both are odd. Every time both are positive or both are negative, so negative into negative will be positive. So sum of two positive number is coming as 24, and both the number will be consecutive also, right? So I have only one option. One number is 3, one number is 4. And second time one number is -3, one number is -4. And both are अच्छा, working for it. है Yes. नहीं Mm-hmm. और नहीं है सोल्यूशन? आते हैं, देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन मेरे पास जा सकते हैं। यही प्रोडक्ट तो मेरे पास ये हो गया, राइट? फर्स्ट दिस इज ओके। सो एक, अब ये नंबर में लाइक 24 यू हैव टू गो, लेकिन राइट? हम लोग ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते कि लाइक y माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस। यस 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 यस, दैट इज द मेथड ना। वो तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो सभी, मतलब आई गेस सभी को दिख रहा होगा एक ये चीज, कि इफ यू फैक्टराइज देन यू विल गेट x माइनस वाई, एंड सेकंड इज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 24। नाउ यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस 24 इज 1, 24, 2, 12, all the numbers, right?
2, 12, right? 3, 8, and minus, again, you have to take minus also, right? Both the numbers are even is not possible because, right, मेरे को 24 चाहिए, so 124, ये दो फैक्टर ही आएंगे ना, ये भी फैक्टर, सॉरी, इवन वाले नहीं आएंगे, ये दो फैक्टर आएंगे, राइट? सो व्हाट आर द नंबर्स? एक बार -1 24, एक बार 1 -24, ओके? 1 and -1 -24, -1, and -24 -1. This is x minus y and y plus x. So again, you are getting this 4 solution, and 3 and 8. So 3 into 8 -3 -8 -3 8 -8 3 and all. Right? So you can see the numbers, right? If it is coming, so obviously that will work for you. ठीक है ना? तो बहुत सारे वेरिएशंस को यू कैन वॉच। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट वाले जो हमारी वर्किंग होगी ना, हम लोग जो काम करेंगे वो इसी पर काम करेंगे, इंटीजर वाले पे, राइट? तो यू ऑल हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। हाँ, हम लोग कल मिल रहे हैं, कल हम लोग पहले आफ्टरनून में मिलेंगे। वी हैव टू डू 13 17 8 सॉल्यूशन आ रहे हैं ना बेटा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऑर्डर्ड पेयर विल बी 8, एक्स और वाई के जो डिफरेंट वैल्यूज है ना। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग कि कल हम लोग ज्योमेट्री करेंगे ना, कल ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस फिर से हम लोग करेंगे।